today from 1 second. Who's recording the meeting? Yes, I'm recording. Oh, okay, good. So we're gonna continue with the with First John. We're gonna study from chapter 3 today. और हम पहला यूहन्ना उसकी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए तीसरे बाब का आज मुतालिया करेंगे And I hope we can go more than the first verse. और मैं ये सोचता हूँ कि हम पहली आयत से बढ़कर आगे भी कुछ और सीखेंगे Because like on the first verse alone I can spend 1 hour easily. क्योंकि इसकी जो पहली आयत है मैं इसी पर 1 घंटा आसानी से आपके साथ खुदा के कलाम में से बातचीत कर सकता हूँ This is the middle of the ladder, the middle of John's ladder. It's the richest part of John's ladder. ये जो यूहन्ना ने खत लिखा है ये उसका मरकजी है और ये सेंटर है उस खत का And it really talks about our identity. और ये हमारी Believer's पहचान identity. और ये हमारी पहचान के बारे में एक जो रास्तबाज बंदा है उसकी पहचान के बारे में बताता है Who are you? आप कौन हैं You know, I'm Pakistani, I'm Hungarian, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं हंगेरियन हूँ I'm Jewish. मैं But who यहूदी are हूँ you? लेकिन आप हैं कौन According to John, we are as believers children of God. यूहन्ना के मुताबिक जितने भी रास्तबाज हैं वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं And that's actually my identity. ये असल में मेरी पहचान है I'm a child of God. मैं खुदा का बेटा हूँ You remember the Apostle John when he was walking with Jesus, learning from Jesus? आपको याद है जब यूहन्ना यीशु मसीह के साथ चल रहा था और उससे सीख रहा था Relaxed with Jesus, you know, sleeping almost in the lap of Jesus. You remember that, John? आपको याद है कि वो खुदा यीशु मसीह के गोद में सो रहे थे पीछे Oh, and he doesn't even call himself John. He calls himself, I am the one that Jesus loves. वो अपने आप को यूहन्ना भी नहीं कहता बल्कि वो ये कहता है कि मैं वो हूँ जिससे यीशु मसीह प्यार करता है Oh, I like that. ये बड़ी जबरदस्त बात है I want to know that he loves me. वो ये जानना चाहता था कि खुदावंद उससे प्यार करता है And I want to know, I know who I am. We can say that. I know who I am. वो ये जानता था कि कौन है वो So this is what we're going to look at. We're going to read from 1 John chapter 3 verse 1. हम पहला यूहन्ना तीसरा बाब उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे It starts like this. See. ये ऐसे शुरू होती है कि देखो Deco. Can't you see it? देखो क्या आप Can you देख सकते see हैं it? क्या आप देख सकते हैं See this great love. John not just calls it love. John calls it great love. ये देखिए कितनी बड़ी बात है वो कहता है ना सिर्फ मोहब्बत बल्कि अजीम मोहब्बत का यहाँ पर तज़किरा किया गया है Let's read the verse. See how great a love the Father has bestowed upon us. देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है That we should be called children of God. कि हम खुदा के फर्जंद कहलाएं And such we are. और हम हैं भी For this reason, the world does not know us because it did not know him. दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना So this, as I said, this is a very, very rich verse. जैसे कि मैंने ये कहा है कि ये बहुत सीखने वाली आयत है John says, see, behold, the way God loves you. जॉन यहाँ पर कहता है देखो खुदा ने कैसी मोहब्बत तुमसे की है See it, and not just see it, but see the greatness of it and the way God is doing this loving. वो ये कहता है कि देखो ना सिर्फ देखो बल्कि ये देखो कि उसने कैसी मोहब्बत की है और किस तरह से वो मोहब्बत को पेश करता है You know, John doesn't just want us to know it,
but John really wants us to see it. वो ये चाहता है कि हम सिर्फ उसको महसूस ना करें बल्कि उसको जाने भी इस मोहब्बत को। You know, see how great this love God has, you know, loved us with, right? वो ये बयान कर रहा है कि किस तरह से खुदावन ने हमारे साथ एक अजीम और मुनफरिद मोहब्बत रखी है। You know, certain things we can measure in life. We have the centimeter, millimeter, meter, we can measure. हमारे पास स्केल हैं, पैमाना जाते हैं उन चंद चीजों को मापने के लिए जिनसे हम उन चीजों को माप सकते हैं। But when God says, see this love, see how great this love is, लेकिन जब लेकिन जब वो ये बात करता है तो वो कहता है कि देखो खुदा की मोहब्बत कैसी बड़ी है। what John wants to show us that we cannot measure this love. It's such a great love. जॉन ये कहता है कि हम उसकी मोहब्बत का माप नहीं सकते, वो अजीम है और बहुत बड़ी है। And this love is given, and God is not expecting something in return. God just loves, and He's not expecting something back in return for खुदा His love. खुदा खुदा हमसे मोहब्बत करता है और उसके बदले में हमसे कुछ भी नहीं चाहता कि हम उसको क्या वापस करें। This word, behold, देखो का जो लफ्ज है यहाँ पर, you know, see, यानी कि देखना। yeah, it's amazing. I mean, for me, this is like, I just want to meditate on it. I just want to understand it, and I want to be all filled with His love. जैसा कि यहाँ पर लफ्ज देखो लिखा गया है तो मैं इसको महसूस करना चाहता हूँ और मैं इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है वो करना चाहता हूँ कि ये क्या चीज है जिसको हमने देखना है। And He says that we should be called children of God. और लिखा गया है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाएं। You know, He calls us children, His children. He calls us children. वो हमें अपने बच्चे कह रहा है। And He was not just like charitable with humanity, having pity over human beings. ये कुछ ऐसे नहीं है कि किसी को ऊपर तरस खा के उसको अपना मतलब बोल देते अपना कोई अच्छाई चाट देनी, ये वाली बात यहाँ पर नहीं है। God had a plan of salvation. He had a plan. बल्कि खुदावन का हमारे लिए यहाँ पर निजात का प्लान है। And He calls us children of God. और वो यहाँ पर हमें खुदावन के फर्जंद कहला रहा है। The Trinity तस्लीस जो है calls us children of God. तस्लीस हमें खुदावन के फर्जंद बनाती है। You know, the Father does. खुदा बाप in 2 Corinthians 6:18. दूसरा करंथियों 6वें बाब की 18वीं आयत में 2 Corinthians 6:18. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. मैं तुम्हारा बाप कहलाऊंगा और तुम मेरे बेटियों और बेटे कहलाओगे, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है। So here we see the Father calls us children of God. और यहाँ पर हमने देखा है कि खुदावंद हमें बेटियां और बेटे पुकार रहा है। Then we see the Son calls us children of God. The Son in Hebrews 2:11. और फिर उसके बाद हमने देखा है कि यीशु मसीह जो उसका बेटा है, इब्रानियों दूसरे बाब की 11वीं आयत में हमें क्या कहता है? This is like Jesus talking. He is not ashamed. He's not ashamed. You know, it talks about Jesus being not ashamed to call them brethren. और वो हमें भाई बुलाने से शर्माता नहीं है। Yeah, Hebrews 2:11. The Son calls us children of God. वो हमें भाई कहने से शर्माता नहीं है। And number 3, the Spirit of God, the Holy Spirit Himself. और पाकरू हमें क्या बुलाता है? रोमियो in Romans 8:16. रोमियो 8वां बाब उसकी 16वीं आयत में पाकरू हमें क्या बुलाता है? The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. और इसी तरह जो रूह है वो हमारी शिफायत करता है कि हम खुदा के बेटियां और बेटे हैं। This is a blessing, right? ये खुदा उनकी एक अजीम मोहब्बत है।
It's a blessing that God gives, and ये खास बरकत है जो खुदावन ने हमें दे रखी है। it's amazing to be loved such a great, with God's love. It's agape love. ये खुदावन की एक अजीम मोहब्बत है जो हमारे अंदर है और उसकी कोई इंतहा नहीं है। अगापे मोहब्बत है ये। If we are truly the children of God, अगर हम वाकई में खुदावन के बेटियां और बेटे हैं, and this is what this chapter is about, और ये जो सारा बाप है ये इसी बात के बारे में है, then we will be like the Father. और हम भी फिर उस बाप की मानिंद होंगे। Yeah. So let's go back to the text. आए वापस अपनी उसी मरकजी आयत पर वापस आए। Last class, you remember last class? आपको याद है पिछली वाली क्लास में we talked about, there John was teaching us about eternal life, the promise of eternal life. अब वहां पर यूहन्ना हमें अपनी जिंदगी और अपनी जिंदगी के जो वादे हैं उनके बारे में बता रहा था। But last class I said this proverb, like father, like son. और पिछली क्लास में मैंने ये मिसाल कही थी कि जैसा बाप होगा वैसा ही बेटा होगा। You remember that? आपको याद है? Yes. So this is actually the topic what John is developing here with this love theme. How great is God's love? और असल में यूहन्ना इस बाप में और इन आयतों में यही बता रहा है कि खुदा किस कदर अजीम और बुलंद है और किस कदर वो प्यार करता है। John is saying that the children of God love one another. वो यहाँ पर ये बयान कर रहा है कि रास्तबाज जो लोग हैं, जो खुदा के फर्जंद हैं, वो दूसरे लोगों से मोहब्बत रखते हैं। Now, when you look at Satan, जब आप शैतान की तरफ देखते हैं and his plan, और उसके मंसूबे को, Satan's plan is that the brethren, the brothers and sisters, would not have love for one another. शैतान का ये प्लान है कि बहन भाई जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना रखें। Satan loves it when he doesn't have to even work because brothers and sisters do not love each other. शैतान को ये काम करना पसंद है, उसके पास कुछ हो भी ना हो तो वो ये चाहता है कि वो हर वक्त किसी ना किसी तरह से ये लोग आपस में मोहब्बत ना करने पाए। When Christians are jealous of each other and judging each other, जब मसीही लोग जो हैं एक दूसरे से हसद रखते हैं और एक दूसरे की अदालत करना शुरू कर देते हैं, and always talking behind each other's back, और एक दूसरे की चुगलियां करते हैं पीठ पीछे, oh, Satan is happy. तो शैतान जो है वो खुश होता है। Oh, they don't love one another, they jealous. वो ये कहता है कि अच्छी बात है, एक दूसरे प्यार नहीं करते हैं। I don't even have to do anything. वो ये कहता है मुझे तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, आप पे ही सारा कुछ जान देना। Satan hates it when he sees the brothers loving one another and शैतान को इस बात से नफरत है कि जब मसीही लोग जो हैं वो आपस से एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, Christians being in unity. जब मसीही लोग जो हैं वो इत्तेफाक में होते हैं। You remember Jesus in his high priestly prayer, what he prayed? आपको याद है खुदा यीशु मसीह ने जब काहिन के तौर पर दुआ की तो उसने क्या कहा? He prayed for unity. उसने इत्तेफाक के लिए दुआ की। He prayed for unity. उसने इत्तेफाक के लिए दुआ की कि हम बंधे रहें एक दूसरे के साथ। He prayed for his children that they would have unity. उसने अपने बच्चों के लिए दुआ की ताकि हम एक दूसरे के साथ राब्ते में रहें। So children of God love one another. That's one mark of a true Christian. ये एक निशानी है एक सच्चे मसीही रास्तबाज की कि वो दूसरे रास्तबाजों से, दूसरे लोगों से प्यार करता है। And I want to make this very simple. I don't want you to start judging yourself the wrong way. मैं बड़ी सादा सी बात कहना चाहता हूँ कि आप एक दूसरे को मुख्तलिफ तरीकों से जज करने की कोशिश ना करें। Maybe you start thinking, oh, I don't love him and I don't love him. I'm not a true Christian. हो सकता है आप कहें कि अच्छा मैं तो उसे प्यार नहीं करता, इसको प्यार नहीं करता, शायद मैं एक अच्छा क्रिश्चियन नहीं हूँ।
because there are people we naturally kind of like afraid of or don't like, you know what I mean? क्योंकि ये एक फितरती अमल है, क्योंकि हम कई बार कुछ लोगों को नापसंद करते हैं, मैनू नहीं सही लगता, वो नहीं सही लगता, But ऐसा I करते हैं हम। love this, that if लेकिन ये God is in me, if I'm a child of God, लेकिन अगर खुदावंद मुझ में है और मैं खुदा का बेटा हूँ, you know, through his power, I have the strength to love my brothers and sisters in Christ anywhere they are in the world. सो अगर खुदावंद मुझ में है तो उसकी कुदरत और उसकी ताकत के वसीला से मैं दूसरे लोगों से मोहब्बत करना शुरू कर दूंगा, कहीं भी। Now, I explained this, so let's read verse 1 again and then we will see the explanation about the world. आए दोबारा से पहली आयत को पढ़ते हैं और दुनिया के बारे में जो है उसको देखेंगे हम। Yes, see how great a love the Father has bestowed on us that we should be called children of God, and such we are. देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाएं, और हम हैं भी। For this reason, the world does not know us because it did not know Him. हम दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। So it says here the world does not know us. और यहाँ पर लिखा गया है कि दुनिया हमें नहीं जानती। But that's not important ये कोई जरूरी बात नहीं है, because we are not of this world. क्योंकि हम इस दुनिया के नहीं हैं। We are children of God. हम खुदा के बेटियां और बेटे हैं। We don't want to be known by the world. हम ये नहीं चाहते कि दुनिया हमें बड़ा जाने और पहचाने। They didn't, you know, the world didn't know Jesus either. यहाँ तक कि खुदा यीशु मसीह को भी उन्होंने ना जाना। But we want to be in the plan of God. लेकिन हम खुदा उनके मंसूबे में रहना चाहते हैं। And the plan of God is that we would live in unity as the body of Christ on this planet. और खुदा उनका मंसूबा ये कि इस दुनिया में रहते हुए हम यीशु मसीह का बंधन की तरह एक दूसरे के साथ बने रहें और जुड़े रहें। Verse 2. दूसरी आयत, Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we shall be. अजीजों हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। We know that when he appears, we shall be like him because we see him just as he is. इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। You know, faith. यहाँ पर ईमान का जिक्र किया गया है। You know, we live by faith. हम ईमान से जिंदा रहते हैं and we wait for his appearing with expectation. और हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो जाहिर हो एक उम्मीद के साथ। And here John says, when he appears, we shall be like him. और यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है कि जब वो आएगा तो हम भी उसकी मानिद होंगे। And verse 3, और तीसरी आयत में, and everyone who has this hope fixed on him purifies himself just as he is pure. और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है वो अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। Yeah, everyone who has this hope, this is a future hope. हर किसी के पास ये एक उम्मीद है और ये एक मुस्तकबिल की जो हमारी उम्मीद है वो है। Yeah, it means a confident anticipation, you know, waiting for it. With confidence. ये एक उम्मीद है जिसको हम बड़े बेसब्री तरीके से जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। You know, looking for him, looking to be with him. उसकी राह तकते हुए और उसके साथ मिलने के लिए उसकी राह तक रहे हैं हम। So the first three verses, verse 1, 2, and 3. पहली तीन आयत, पहली, दूसरी और तीसरी आयत में, you know, this really talks about the privilege of sonship. ये जो खुदावंद का बेटा होने के नाते या फर्जंद होने के नाते से जो शरफ हमें दिया गया है उसके बारे में है। Yeah. We are children of God. हम खुदा के फर्जंद हैं। We know that some things are revealed and some things are not revealed. हम ये जानते हैं कि कुछ चीजें जो हैं वो पोशीदा हैं और कुछ चीजें जो हैं वो जाहिर होने वाली हैं।
But we also know that once when Jesus comes back, we will be one with him. Everything will be clear. लेकिन हम ये जानते हैं कि जब यीशु वापस आएगा तो हम उसके साथ एक हो जाएंगे, जैसा वो है वैसे ही हम भी होंगे। Yeah. We shall be like him. I love this statement. We shall be like him. ये बड़ी जबरदस्त आयत है। ये लिखा है कि जैसा वो है हम भी वैसे ही हो जाएंगे। None of us will be finished until we see Jesus. कोई भी चीज खत्म नहीं होगी जब तक कि हम यीशु मसीह को देख ना लें। Only then we shall truly be like him, right? और तब ही हम उसकी मानिद, हकीकत में तभी हम उसकी मानिद होंगे। That's what this verse says. We shall see him as he is. और यही आयत में लिखा है कि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो है। In 1 Corinthians chapter 13 verse 12. पहला कुरिन्थियों 13वें बाब की 12वीं आयत। For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I shall know just as I am known. अभी जो है हमको थोड़ा धुंधला सा नजर आता है मिरर में, लेकिन एक वक्त ऐसा आने वाला है जब हम उसे रूबरू देखेंगे। You know, today we have very good mirrors. We can see very well. आज हमारे पास जो शीशा है वो बड़ा साफ और शफाफ है, जिसमें हम क्लियर देख सकते हैं। Like right now we have the camera on. We can see each other, right? Very clearly. अभी कैमरा ऑन है जिस तरह से, और हम एक दूसरे को बड़े वाज़ेह तरीके से देख सकते हैं। But in Paul's time, mirrors were not clear. You know, you would not see clearly in the लेकिन mirror. पौलुस रसूल के जमाने में जो शीशा था वो इतना वाज़ेह नहीं था। That's why Paul says, "Oh, we see only dimly, right? Not और clearly." इसलिए वो कहता है, वो इसलिए ये कहते हैं कि हमें थोड़ा सा धुंधला सा नजर आता है। But then when Christ comes, we will see face to face, right? लेकिन जब यीशु मसीह वापस आएगा तो हम रूबरू उसको देखेंगे साफ साफ। Yeah, when we see Jesus जब हम यीशु को देखते हैं with perfect clarity one day, और हम उसे बड़े वाज़ेह तौर पर साफ तरीके से उसको देखेंगे। you know, that's why, you know, if I have a choice ये हमारे पास एक चॉइस है, and the choice is to go to heaven today, I'm ready to go. I want to see clearly. और हमारे पास एक चॉइस ये है कि हम आसमान पर चले जाएं और यीशु मसीह को देखें वहां पर से रूबरू, I want to see Jesus as he is. और हम यीशु मसीह को वहां पर देखें जैसे वो है। Yeah, what will we see when we see Jesus? हम क्या देखेंगे जब हम यीशु मसीह को देखेंगे? तो In Revelation मुकाशवा की किताब chapter 1 पहले बाब की from verse 13, 13वीं आयत से, this is a vision how, you know, Jesus is described here. ये एक रोया दी गई है यहाँ पर यीशु मसीह को जो है वो बयान किया गया है पहले बाब की 13वीं आयत में। He was dressed in a long robe with a golden breastplate. वो एक सफेद जामा पहने हुए है और सुनहरा सीने बंद है उसके पास। His head and hair were white as snow white wool. उसका जो सर और उसके जो बाल हैं वो सफेद बर्फ की मानिंद हैं। His eyes blazed like fire. उसकी आंखें आग के शोले की मानिंद हैं। And his feet shone as the finest bronze glows in the furnace. और उसके पांव खालिस पीतल के से थे। His voice had the sound of a great waterfall. और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। And I saw that in his right hand he held 7 stars. और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। A sharp two-edged sword came out of his mouth. और उसके मुंह से एक दोधारी तेज तलवार निकलती थी। And his face was ablaze like the sun at its highest, at its height. और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। Now this is not the same Jesus that walked on this earth. ये वो वाला यीशु मसीह नहीं है जिसको हमने देखा था, जो जमीन पर आया था। He's not looking like a normal man. ये अब एक आम इंसान की मानिंद नजर नहीं आ रहा।
Yeah, this is the Jesus we will see face to face one day. अब ये वो मसीह होगा जिसको हम रूबरू देखेंगे एक दिन। Yeah, I love this. ये बहुत खूबसूरत आयत है और मुझे पसंद है। We shall be like him, for we shall see him as he is. और हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। And that's why we say, we, as we live on this earth, as we are children of God, as we practice our faith, we become like Jesus. More and more, we are like Jesus. इस दुनिया में रहते हुए जब हम अपने ईमान को अमल में लाते हैं तो हम यीशु मसीह की मानद हो जाते हैं, जैसे कि वो था उसी तरह से हम हो जाते हैं। Yeah. You know, reflection, the mirror. उसका जो अक्स है वो हम पर है। You know, sometimes you look in the mirror and you look good, you feel good. कई बार ऐसा होता है कि आप शीशे में देखकर अपने आप को बड़े खुश होते हैं। You know, so, you know, mirror, sometimes it's like the word of God is our mirror. खुदावंद का कलाम जो है वो हमारे लिए शीशे का काम करता है। And we see Christ, and we see Christ in his brightness. और जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह को फिर हम उसके असली रूप में और जाहो जलाल में देखते हैं। And his brightness comes upon us because we see him and we are filled with him. उसका जो जाहो जलाल है वो हम पर आता है क्योंकि हम उसे देख रहे होते हैं। Okay. Let's go to the next verse. And everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. आए अगली आयत पर चलिए, वर्स Yes. 4, right? 5. No. Oh, We are Revelation. still in we are still in verse 3. 1 John 3:3. तीसरी आयत पर, और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है वो अपने आप को वैसा ही पाक करता है। Yeah. Purifies himself just as he is pure. अपने आप को पाक करें जैसा कि वो पाक है। You know, this hope, everyone who has this hope, हर किसी के पास ये उम्मीद है, जिस किसी के पास ये उम्मीद है। like what hope? You know, I anticipate to be with Jesus Christ one day. मेरा ये बड़ा जज्बा है कि मैं यीशु मसीह के साथ हूँ एक दिन। Just having this anticipation, this waiting gives me hope, gives me strength. और यही जो जज्बा है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, मुझे एक उम्मीद देता है। And this verse is just showing us that we will be more like Jesus and we will be with Jesus. और यही आयत है जो बयान करती है कि हम भी एक दिन यीशु मसीह के मानद होंगे, उस जैसे उसके साथ। And this verse says, this hope in him, the hope is in Jesus. और ये आयत में लिखा गया है कि खुदावंद यीशु मसीह में जो हमारी उम्मीद है। You know, our hope is not in heaven. हमारी उम्मीद जो है वो आसमान पर नहीं है। Or our hope is not in our glory in heaven. और ना ही जो आसमान के ऊपर जलाल है उसमें है। Our hope is in him. बल्कि हमारी उम्मीद जो है वो यीशु मसीह में है। We must never set our hope on other things. हमने अपनी उम्मीद किसी और से नहीं रखनी। Not on a relationship. ना ही किसी रिश्तेदार पर। Not on success. ना ही अपनी कामयाबी पर। Your health. ना ही अपनी दौलत पर, अपनी सेहत पर। Our possessions, what we own. हमारे पास जो कुछ है उसके ऊपर। Our only real hope is in him. हमारी जो वाकई हकीकी उम्मीद है वो यीशु मसीह है। Amen. आमीन। Okay, that's good. Let's read. आए आगे चलते हैं। So again, this chapter, these verses are about our identity. John wants us to know that we are children of God. ये जो आयात हैं ये हमारी पहचान पर है कि हम कौन हैं, हम खुदा के फर्जंद हैं। जॉन हमें ये बता रहा है यहाँ पर। And the other thing was the children of God love one another, love each other. और दूसरी बात ये कि खुदा के जो फर्जंद हैं वो एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं।
So now comes, this is a harder portion, but we need to study this. This is very good. ये थोड़ी सख्त तालीम है जो आगे आ रही है, लेकिन हम इसको सीखेंगे. Some people are confused when they read these verses. कुछ लोग परेशान हो जाते हैं जब वो इन आयत को पढ़ते हैं. तो Everyone, verse 4. Everyone चौथी आयत. who practices sin also practices lawlessness, and sin is lawlessness. जो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है, और गुनाह शरा की मुखालफत ही है. Everyone, सब कोई, हर कोई, every human being हर इंसान sins. गुनाह करता है. Anybody here who is not a sinner, guys? यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने कभी गुनाह नहीं किया? You know, you never sin. आपने कभी गुनाह नहीं किया? You know, we all sin and fall short of the glory of God. हम गुनाह करते हैं और खुदा के जलाल से महरूम हो जाते हैं. But watch what John says here. It's amazing. लेकिन यहाँ पर देखिए जॉन यहाँ पर क्या कर रहा है. Verse 5. 5वीं आयत. And you know that he appeared in order to take away sins, and in him there is no sin. तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए, और उसकी जात में गुनाह नहीं. This is in the present tense form in the Greek. ये जो जुमला है ये यूनानी में मौजूदा दौर के बारे में है. The present tense. मौजूदा दौर के बारे में. And here John is teaching us about the sign of sonship. और यहाँ पर यूहन्ना जो है वो हमें फर्जंदियत के बारे में जो पहचान है वो करवा रहा है. And this is why in verse 6 he says, इसलिए 6वीं आयत में वो ये कहता है, no one who abides in him sins. जो कोई इसमें कायम रहता है. Verse 6, yeah. No one who sins has seen him or knows him. जो कोई इसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता. Interesting. To understand this verse, we have to read the next verses. You ready? इसको समझने के लिए हमें अगली आयत को पढ़ना पड़ेगा. Okay. Little children, let no one deceive you. अब बच्चों किसी के फरेब में ना आना. The one who practices righteousness is righteous just as Jesus is righteous. जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है. The one who practices sin is of the devil. जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है. For the devil has sinned from the beginning. क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है. The Son of God appeared for this purpose, that he might destroy the works of the devil. खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए. Okay, very good. What is, you know, the devil here means sin. इब्लीस यहाँ पर जो है इसका मतलब है गुनाह. We can read this verse like this: the Son of God appeared for this purpose, that he might destroy the works of sin. यहाँ पर लिखा गया कि खुदावंद इसलिए जाहिर हुआ कि वो इब्लीस के कामों को मिटा दे. Yeah, in verse 9, 9वीं आयत में, no one who is born of God practices sin. जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वह गुनाह नहीं करता. Because his seed abides in him. क्योंकि उसका तुख़्म उसमें बना रहता है. And he cannot sin because he is born of God. बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है. By this, the children of God and the children of the devil are obvious. इसी से खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं. So basically, you know, let me explain. मैं इसको बयान करना चाहता हूँ. So the sign of sonship. खुदा के फर्जंद होने के जो निशान है वो क्या है? Christ in me, खुदा यीशु मसीह हम में है, does not sin. जो कि गुनाह नहीं करता. When John is talking about sin here, जब यूहन्ना यहाँ पर गुनाह की बात करता है,
The Greek word for practicing sin जो यूनानी का लफ्ज है गुनाह करने के बारे में, is poien, and इस means पो, yeah, it पोयन means habitual, as a habit, you know. और पोइन यानी कि जो यूनानी लफ्ज है उसका मतलब है यानी कि एक आदत है आपको। You can see this in verse 4, verse 7, verse 8, and verse 9. आप ये चौथी आयत में वर्स 4, 7, 7, 8 8, 9. और 9वीं आयत में आप इसको देख सकते हैं When you see the word practices sin, कि जो गुनाह करता है इन आयतों में आपको पता लगेगा it means habitually doing these उसको things. ये आदत है, वो इसलिए ये कर रहा है। Yeah, he had to deal with some agnostics of those days. और उसको इन दिनों के साथ जो है वो देखना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। And he had to give definition to these believers about sinning. और उन्हें रास्तबाजों को इस गुनाह के बारे में बताना पड़ता है। And that's why he says, if you are born of God, you will not habitually sin. इसी वजह से वो कहता है कि अगर आप खुदा से पैदा हुए तो आपके अंदर ये आदत नहीं है कि आप बार-बार गुनाह करें। Don't be confused. You can sin. I mean, we all, can fall and sin. आप बुकलाहट का शिकार ना हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सब लोग इंसान हैं और हमसे गलतियां सरजद हो सकती हैं। The righteous man falls 7 times a day, but rises up again. It doesn't stay down. रास्तबाज जो है वो 7 बार गिरता है और खुदावंद उसे दोबारा से उठा खड़ा करता है। But the righteous man doesn't stay down and stays in his sin. लेकिन रास्तबाज बुराई में गिरा ही नहीं रहता और उसमें पड़ा ही नहीं रहता, बल्कि खुदावंद उसे उठा लेता है। So really, John is dealing here with this habitual practice of sinning. और यूहन्ना यहाँ पर एक जो आदत है गुनाह की, उसके बारे में हमें बता रहा है। In verse 9, it says, God's seed is in us. His seed abides in us. 9वीं आयत में यहाँ पर बताया गया कि खुदा का तुखम जो है वो हमारे अंदर है। And that's why we cannot sin. इसी वजह से हम गुनाह नहीं कर सकते। Yeah, Christ in me cannot sin. यीशु मसीह जो हमारे अंदर है वो कभी भी गुनाह नहीं कर सकता। Okay, let's go to verse 10. आइन 10वीं आयत पर आते हैं। Anyone who does not practice righteousness is not of God, nor the one who does not love his brother. इसी से खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। Okay, so now comes the big lesson of chapter 3. यहाँ पर तीसरे बाब में एक बड़ा जो सियाको सबा है वो ये है कि अपने भाई से मोहब्बत रखना। Verse 11. 11वीं आयत। For this is the message which you have heard from the beginning, that we should love one another. क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना वो ये है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखें। You know, there's a lot of songs we sing about loving Jesus. आपको पता है यहाँ बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो हम गाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को प्यार करो, यहाँ हम करते हैं। But actually we are hurting Jesus with our testimony so many times. We are not loving. लेकिन हम अपनी गवाहियों से खुदावंद यीशु मसीह को दुखी करते हैं, जबकि हम अपने भाइयों से मोहब्बत नहीं रखते। With how we are ashamed of him sometimes. और हम शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। And the same thing with loving one another. और ये सेम बात जो है वो एक दूसरे के साथ भी है हमारी। It's so hard sometimes to love our brothers and sisters. ये कई बार ये बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने बहन भाइयों से मोहब्बत रखें। But John says, this is the message I preached from the beginning, that you would love one another. लेकिन यूहन्ना यहाँ पर यही कह रहा है कि यही बात जो थी मैंने शुरू से तुम्हें बताई थी। This is what Jesus said, a new commandment I will give you, that you love one another. और खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही कहा था कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि अपने बहन भाइयों से मोहब्बत रखो।
Forget the law, forget the old commandments. शरीयत की बातों को भूल जाओ, पुरानी बातों को भूल जाओ। I give you one new commandment that खुदा you यीशु love मसीह ने one कहा, another. मैं सिर्फ तुम्हें एक ही नया हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, Because Jesus saw that there is this problem of loving. क्योंकि खुदा यीशु मसीह जानता था कि हमें प्रॉब्लम आ रही है एक दूसरे से मोहब्बत रखने में। Verse 12, 12वीं आयत, love one another, not as Cain, who was of the evil one and slew his brother. और काइन की मानिद नहीं ना बने, जो शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। And for what reason did he slay him? और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? Because his deeds were evil and his brothers were righteous. इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ते के थे। Wow, that's a good explanation for the ये story बड़ी of जब Cain and Abel. ये बड़ी जबरदस्त आयत है काइन और हाबिल की। Okay, verse 13. 13वीं आयत, Do not marvel, brethren, if the world hates you. ऐ भाइयों, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तअज्जुब ना करो। I can translate like this. Do not marvel, brethren, if मैं इस तरह since से the मैं world इस hates तरह you. से मैं इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से करना चाहूंगा कि तअज्जुब ना करो अगर गुनाह से भरी हुई दुनिया जो है वो आपसे अदावत रखती है, गुनाह आपसे अदावत रखता है। Someone called me this week and said, Joseph, did you hear in China they are persecute Christians? किसी ने मुझे पिछले हफ्ते कॉल किया और कहा, उसने मुझे कहा, पास्टर जोसेफ, आपको पता है कि मसीहियों को तंग किया जा रहा है चाइना में? And I said, no, I didn't hear, but I'm sure they do. मैंने उसे कहा कि नहीं, मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वहां पर ऐसा होता है। Not only in China, also in Pakistan, also even in America now. ये ना सिर्फ चाइना पाकिस्तान बल्कि अब तो अमेरिका में भी ये शुरू हो गया है। If you are a true Christian and if you stand up for the word of God, you will be persecuted more and more in this evil world. अगर आप एक सच्चे मसीही हैं और खुदा के कलाम के ऊपर खड़े होते हैं तो आपको तंग किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको अजियत दी जाएगी। Because the world is organized. There's an organized system behind the world. क्योंकि ये जो दुनिया है इसको एक तंजीम के तहत जो है वो चलाया जा रहा है। And all demonic powers, they will hate the children of God. They will hate the work of God. और हर तरह की बदरूहें जो हैं, तरीके की कुव्वतें जो हैं, वो खुदा के लोगों से नफरत रखती हैं। And that's why John says, don't marvel, don't be surprised. इसीलिए यूहन्ना यहाँ पर कह रहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हैरान मत हो, but you go forward. आगे बढ़ते जाओ। And this is, now we come to a definition of real, pure Christianity. If you want to know you're a pure, real Christian, this is it. These verses will help you. अगर आप एक सच्चे और रास्तबाज मसीही हैं तो ये आयत आपकी हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। Some people, they are shocked when I tell them this because they don't read the Bible. They don't even know what pure Christianity is. कुछ लोग जो हैं वो बड़े हैरान हो जाते हैं जब मैं उनको ये आयत पढ़ने को कहता हूँ, जब मैं उनको ये बताता हूँ, वो ये नहीं जानते हकीकी मसीहत क्या है, what it means to be a true Christian. सच्चे मसीही होने से आपकी क्या मुराद है? Oh, my father is a pastor, my mother is a pastor, I'm born in a Christian family. मेरा बाप भी पादरी था और मेरी माँ भी खादमा थी, मैं तो एक मसीही घराने से पैदा हुआ। I must be a Christian. और मैं ऐसे करके मसीही हूँ। Okay, watch this. आए इसको देखिए आगे। Verse 14. 14वीं आयत। We know that we have passed out of death into life. हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। Because we love the brethren. क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। He who does not love abides in death. जो कोई मोहब्बत नहीं रखता वो मौत में कायम रहता है। Everyone who hates his brother, verse 15, 15वीं आयत,
जो कोई अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में और वो कातिल है। And you know that no murderer has eternal life abiding in him. और तुम जानते हो कि किसी खूनी की भी उसके घर में जगह नहीं है। So verse 14 and 15, I usually make this note. This is the love test. और जो 14वीं और 15वीं आयत है मैं उसको इस तरह से बयान करता हूँ कि ये आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। Do you love the brethren, क्या आप भाइयों से your मोहब्बत brothers and रखते हैं? sisters? Or क्या आप you अपने you बहन always like talking, and looking आ, and being क्या, jealous, being unhappy? क्या आप हर वक्त अपने बहन भाइयों से हसद करते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, बस मुंह खोल के बस बक बक करते रहते हैं? Or you follow Jesus? या फिर आप यीशु को फॉलो करते हैं? We know John 3:16 so well. For God so loved the world that he gave his only begotten son. हम यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। Now put together John 3:16 with 1 John 3:16. आए इसको मिलकर पढ़िए, यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत और पहले यूहन्ना की 3 बाब की 16वीं आयत को इकट्ठा करके पढ़िए। We know वाह, love by this, that he laid down his life. हम मोहब्बत को इसी से जानते हैं कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दी। He laid down his life for us. उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी And we ought to lay down our lives for the brethren. और हम भी अपने भाइयों की खातिर अपनी जान देते हैं। John says we know love. This ये is मत how we कहिए, know. इस तरह से हम उसकी मोहब्बत को जान सकते हैं। The love test and the test of love. खुद मोहब्बत का जो इम्तिहान है वो ये है, We know love by this, हम मोहब्बत को इसी से जानते हैं। that he laid down. He's our example. वो हमारी मिसाल है कि उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी। He didn't just sing songs about loving us, but he did die on the cross for our sins. उसने अपनी मोहब्बत के गीत हमारे लिए बस गाए नहीं है, बल्कि उसने ऐसा करके दिखाया कि सलीब पर अपनी जान हमारे लिए दे दी। Brothers sometimes are like this. Oh, I love you, I'm praying for you. And actually, they never really pray for you. They lie. कई कई बार ऐसा होता है कि भाई कहते हैं ओए मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, लेकिन असल में झूठ बोल रहे होते हैं और कभी भी आपके लिए दुआ नहीं करते। If you truly love, that will cost you something sometimes. अगर आपको किसी से हकीकी मायनों में प्यार है तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वाह, The most expensive thing sometimes is our time. We give our time to each other and listen to each other and pray for each other. हो सकता है आपको अपना बहुत कीमती वक्त देना पड़े और एक दूसरे को सुनना पड़े कि क्या है इसको। But John will take it to another level now in verse 17. Look at this. लेकिन यूहन्ना यहाँ पर 17वीं आयत में एक और दर्जे के ऊपर हमें लेकर चले जाता है। And this is where the church fails and fails and fails. और यहाँ पर आकर कलीसिया जो है वो फेल हो जाती है, रद्द हो जाती है। Okay, it says, this is a good verse. ये बड़ी अच्छी आयत है। But whoever has the words goods जिस किसी के पास दुनिया का माल हो and beholds his brother in need and closes his heart against him, और अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में दरेक करे, तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है। how does the love of God abide in him? तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है। This is a hard verse for the rich. ये बड़ी सख्त आयत है जो अमीर लोग हैं उनके लिए। This is a hard verse, and a lot of people actually that are poor misunderstand this verse. और कई बार जो थोड़े निचले तबके के लोग हैं वो इसको कुछ और ही समझ लेते हैं।
but it's a big verse for rich Christians, you know, big और verse. ये और ये जो बड़े मालदार मसीही हैं उनके लिए ये आयत है। And John actually answers this dilemma beautifully in verse 18. और 18वीं आयत में फिर यूहन्ना इसका जो है जवाब देता है कैसे। You know, my son asked me, Father, why there are so many rich people or so few rich people and so many poor people in the world? मेरा बेटा कभी कभी मुझसे पूछता है कि ऐसा क्यों है कि कई लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग दरमियाने दर्जे के अमीर हैं और कुछ बस साफ दे, ये ऐसा क्यों है। A good question. ये एक अच्छा सवाल है। And my little daughter said, Daddy, we need money. और मेरी जो छोटी बेटी है वो कहती है पापा पापा मुझे पैसे चाहिए। Take this plastic card. Let's go to the bank and take some money out. और वो ये कहती है कि जो एटीएम का कार्ड है, प्लास्टिक कार्ड, उसके अंदर डालो एटीएम में, बैंक के अंदर चले और वहां से पैसे लेके आए। And I told her, no money. You know, there is no money on the card. और मैं ऐसे कहता हूँ कि नहीं नहीं उत्थे पैसे पूसे नहीं हैंगे। But my daughter said, it's so easy, Dad. You go to the bank and take the money. और वो मुझे कहती है कोई बात नहीं, आप बैंक चले जाओ और वहां से पैसे लेके वापस आओ। And I said, there's no money. I mean, और you know, मैं ऐसे कहता हूँ नहीं पैसे हैं। We have different perceptions. We understand differently sometimes. हमारा सोचने का जो नजरिया है वो मुख्तलिफ होता है, हम कुछ और तरह से सोच रहे होते हैं। That's why John explains in verse 18 beautifully. इसीलिए यूहन्ना जो है वो 18वीं आयत में पढ़ रहा है। कोई पढ़ेगा 18वीं आयत? He says, little children. है बच्चों, Little children. हम कलाम और जुबान ही से नहीं बल्कि काम हम्म। और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें। ऐ बच्चों, हम कलाम और जुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें। Wow. कैसी जबरदस्त आयत है। Lord, teach me. खुदा Lord, मुझे सिखा, teach खुदा me. मुझे सिखा, Teach सबको us. सिखा खुदा, खुदा हम सबको सिखा। We want to love like you love. हम उसी तरह से मोहब्बत रखें जिस तरह से अब आप तूने हमसे मोहब्बत रखी। We don't want to tell our brothers and sisters, oh, you should give, you should do this, you should do that. हाँ, हम अपने बहन भाइयों को ये ना बताएं तुम ही दे, तेनू एंड करना चाहिए, एवेंट करना चाहिए, ऐसे है वैसे है। But we want to do, you know, according to God's work in us, through us. और हम ये चाहते हैं कि खुदावंद हम में से होकर करे और खुदावंद ही जो है वो उसको करवाए हमसे। You know, it's so easy to love with words. ये बड़ा आसान है कि खुदा के कलाम के जरिए से हम ऐसा कर पाए। Because it's so easy to lie. कई बार ऐसा होता है कि बहुत सादा आम सी बात है कि हम झूठ बोल देते हैं। But Satan was a liar and he's the author of lies. शैतान जो है वो झूठों का बाप है और वही हमेशा झूठ बोलता है। We want to follow Jesus's footsteps, how he loved indeed. हम दर हकीकत में यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलकर एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहते हैं जैसे उसने मोहब्बत की। And John says, not only deed, but also in truth. ना ही सिर्फ अपने कामों से बल्कि सच्चाई के साथ हम ऐसा करें। Yeah. Verse 19. 19वीं आयत, We shall know by this that we are of the truth. इससे हम जानेंगे कि हक के हैं And shall assure our heart before him. और जिस बात में हमारा दिल हमें इल्जाम देगा, In whatever our heart condemns us, उसके बारे में हम उसके हुजूर अपनी दिलजमी करेंगे। for God is greater than our heart and knows all things. क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। You know, this is like our inner man, or inner man. ये हमारे अंदर का जो ज़मीर है उसके बारे में है। You know, we have confidence, we have assurance. हमारे पास एक इत्मीनान है और हमें पूरा यकीन है।
And that's why it says in verse 21, और इसीलिए 21वीं आयत में कहा गया है, if our heart does not condemn us, we have confidence before God. ऐ अजीजो, जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता, Yeah. Beloved, तो ऐ अजीजो, if our heart does not condemn us, जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता, we have confidence before God. This is the fruit of love. ये मोहब्बत का फल है, तो हमें खुदा के सामने दिलेरी हो जाती है। Verse 22, 22वीं आयत, and whatever we ask, we receive from Him, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, because we keep His commandments and do the things that are pleasing in His sight. क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और जो कुछ वो पसंद करता है। You know, I heard this verse explained like this. This is good. मैंने इस आयत को इस तरह से इसकी जो है वो तशरीह सुनी थी, Whatever we ask, we receive from Him. जो कुछ हम मांगते हैं वो उसकी तरफ से हमें मिलता है। You know, I don't know if you look at your prayers, God give me this, God do that, God go here, God come here, God up and down. हम ऐसा लगता नहीं है, कई बार हम कहते हैं खुदा इंज कर दे, उंज कर दे, अच्छे आ जा, उधर चले जा, ऐ मिल गया, ऐ मिलिया नहीं। My wife said sometimes our prayers like a shopping list. Dun, 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 dun. मेरी बीवी पास्टर जोसेफ की मिसेस कहती हैं कि कई बार हमारी दुआ ऐसी होती है कि हमने शॉपिंग की लिस्ट बनाई होती है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। She says no good. वो ये कहती है कि ये अच्छी बात नहीं है। We have to have intimacy with God, हमने खुदा उनके करीब तर होना है, and we have to be careful what we ask of Him. और हमने ये बड़ा दानिशमंदी से उससे जो कुछ भी मांगना है। And this is the explanation. और ये इस आयत की जो है वो तशरीह है। If we ask from Him, जो कुछ हम उससे मांगते हैं, you can be totally confident that you shall receive from Him. आपको पक्का एतमाद होना चाहिए कि आपको वो जरूर मिलेगा, If you are asking according to the will of God. अगर आप खुदा उनकी मर्जी के मुताबिक वो चीज मांग रहे हैं तो। We don't have time to read it, but you read chapter 5. हमारे पास टाइम नहीं है कि हम 5वां बाब पढ़ें, लेकिन आप जरूर इसको पढ़िएगा, 5वां बाब, verse 14 and 15, and this will help you to understand this will of God. 14वीं और 15वीं आयत आप जरूर इसकी पढ़िएगा। Okay, 2 more verses left, 2 और आयतें बाकी रह गई हैं, and we finished with chapter 3. तो उसके बाद तीसरा बाब जो है वो खत्म हो जाएगा। And this is verse 23, and this is His command, और उसका हुक्म ये है that we believe in the name of His Son Jesus Christ and love one another just as He commanded us. क्या हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं और जैसा उसने हमें हुक्म दिया उसके मुआफिक आपस में मोहब्बत रखें। John 13 verse 34. Love one another. John 3, The Gospel of John 13 34. यूहन्ना की अंजील 23वें बाब की वर्स 13 verse 34. 34 आयत, यूहन्ना की अंजील की। Love one another just as Jesus commanded us. एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे यीशु ने हमें हुक्म दिया है। Verse 24. 24वीं आयत, And the one who keeps His commandments abides in Him, और जो उसके हुक्मों पर अमल करता है वो उसमें कायम रहता है, and He in Him. और वो उसमें कायम रहता है। And we know by this that He abides in us by the Spirit whom He has given us. और इसी से यानी उस रूह से जो उसने हमें दिया, और हम जानते हैं कि वो हमें कायम रहता है। Yeah, this is like this mutual indwelling. ये एक बहामी जो है वो एक ताल्लुक है जो कायम हुआ है। Christ in me, खुदा यीशु मसीह हम में है, I'm in Christ. और हम उसमें हैं। So
today's lesson is my identity. I'm a child of God. तो आज जो हमने सीखा है वो ये है कि मेरी पहचान क्या है। मेरी पहचान ये है कि हम खुदा के बेटियां और बेटे हैं, Children of God love one another, और खुदा के बेटियां और बेटे एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। दूसरी बात हमने ये सीखी, not just by word, but ना also सिर्फ in truth. ना सिर्फ अपनी बातों से बल्कि सच्चाई के साथ अमलन। And number 3 was Christ in me cannot sin. और तीसरी बात हमने ये सीखी कि यीशु मसीह जो मुझ में है वो कभी गुनाह नहीं कर सकता, Meaning habitual. I don't live in habitual sins. और मैं उसका जो गुनाह की जो आदत है उसमें नहीं जीता। But I speak the truth with love, जब मैं ईमान के साथ मोहब्बत के बारे में बोलूंगा, and yeah, I let God live His life through me. और मैं खुदावंद को उसकी जिंदगी जो मुझ में है जीने दूंगा। John said, यूहन्ना ये कहता है, "Behold the Lamb of God who will take away the sins of the world." देखो ये है खुदा का बरा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। That's John the Baptist. ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा। John the Baptist also said, "I must decrease, he must increase." यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये भी कहा कि जरूर है कि मैं घटता जाऊं और वो बढ़ता जाए। And that's my wish for today's students, all of us here, even me, that Christ would increase in us. और मेरी आप सबके लिए ख्वाहिश है, जितने बाइबल स्कूल के स्टूडेंट हैं, मेरे अपने लिए भी, कि हम उसमें बढ़ते जाएं। And he will increase if we study his word and we meditate on his word and we let his word help us to behave in this world. और वो जरूर हमारी रहनुमाई करेगा अगर हम उसके कलाम के मुतालिया करेंगे। वो जरूर हमारे साथ रहेगा और आगे बढ़ने में मदद देगा। Satan hates the Bible शैतान को खुदा के कलाम से, बाइबल से नफरत है, because if we are washed by the word of God, our human behavior changes and we are more like Christ. क्योंकि जब हम खुदा के कलाम से धुल जाते हैं तो हमारा इंसानी रवैया बदल जाता है। So Satan's strategy is to keep us away from the word of God. तो उसकी कोशिश ये है कि वो हमें खुदा के कलाम से परे रखें। And that's why these kind of Bible school classes, Bible activities are very important. I'm so proud of us that we can do this together. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम मिलकर खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि खुदा के कलाम को सीखें। Amen. आमीन, आमीन। मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता हूँ। आमीन। Praise the Lord. Thank you so much. Amen. Hallelujah. Amazing. Yeah. Thank you. Good evening, Pastor Ashraf, and also